2f is equation 3k plus 1 into x square plus 2 into k plus 1 into x plus k equals to 0 has equal roots. Equal roots means what? Alpha equals to beta, है ना? Beta. And we know Yes. that sum of roots equals to alpha plus beta equals to minus b by a. Now alpha plus beta, as they are equal, so in place of beta we can write alpha. Is that clear to you? Equals to minus, when Yes. b is 2 into k plus 1 over a 3k plus 1. It implies alpha plus alpha 2 alpha equals to 2 alpha. 2 into k plus 1 over 3k plus 1. Now this 2 from both sides will be cancelled out, as it is also in the product and this is also in product. So alpha equals to minus k plus 1 over 3k plus 1. Understood everyone? So the value of alpha is minus k plus 1 over 3k plus 1. Then we use product of roots. And what is the formula for product of roots? Alpha into beta equals to C by A. Okay, and as they are equal, so we can write alpha into alpha. Alpha into alpha. Also alpha. And value of C from the equation is k. Okay, so we write k over A is 3k plus 1. It implies alpha square equals to k upon 3k plus 1. It implies now alpha square is minus k plus 1 upon 3k plus 1. Okay. Yes. Whole square equals to k upon 3k plus 1. It implies k plus 1 whole square upon 3k plus 1 whole square equals to k upon 3k plus 1. Now one of the 3k plus 1 will be cancelled out. So k plus 1 Cancel. upon 3k plus 1 equals to k. It implies k plus 1 cross multiplying whole square equals to k into 3k plus 1. It implies k square plus 2k plus 1 equals to 3k square plus k. It implies k square minus 3k square plus 2k minus k plus 1 equals to 0. It implies minus 2k square plus k plus 1 equals to 0. Taking multiplying by minus 2k square minus k minus 1 equals to 0. 2 ones are 2, so the factors are 2k square minus 2k plus k minus 1 equals to 0. It implies when we take 2k common, k minus 1 plus 1 common into k minus 1 equals to 0. It implies k minus 1 into 2k plus 1 equals to 0. Means either k equals to 1 or k equals to minus half. Have you understood this method or not? Yes, Yes, sir. Ayush, Harsh. And there is one more method. Arey bhai, it is very simple that roots are equal. So is there any condition for so B. the roots are equal? Ayush, this method I have discussed you questions, but whenever it is given that roots are equal, we will not use this method. If roots are equal and real, what is the condition? B square minus 4AC equals to 0. Discriminant is 0. Is that clear to you? 0. Yes. Have you used this condition, Ayush? Yes, sir. So why are you not getting them? Now b equals to, in this equation, b is 2 into k plus 1 whole square
minus 4 into value of a is 3k plus 1 into c, value of c is k equals to 0. It implies aspiring 4 into k square plus 2k plus 1 minus 4 into 3k square plus k equals to 0. So 4 is common. K square plus 2k plus 1 minus 3k square minus k equals to 0. Equation will be same. Minus 2k square, 4 cannot be 0 na, plus k plus 1 equals to 0. देखो, is that clear to you? Yes, sir. Remaining will be same. So what is the problem in this question? Can you tell me? Huh? What was your problem in solving this? If we take roots are equal, there one method is this, in which we use sum and product of roots. And one is this, in which we use discriminant must be 0. Understood, everyone? Yes, sir. This method of discriminant is not always useful, but in case of roots equal, this method is very useful. But this method can be used in other parts also. That's why I have explained this method also. Okay. Now you have understood or not? Yes, sir. बताया नहीं तुमने कि प्रॉब्लम क्या थी भाई? अगर प्रॉब्लम बताओ तो हम उस तरह से बता सकते हैं ना, फिर से दोबारा। हाँ, किया था सॉल्व ऐसे, फिर भी नहीं हो पाया, क्या फैक्टर नहीं हो पा रहे थे? हाँ, ये नहीं प्रॉब्लम लग रहा है। टू एफ में क्या है भाई? इक्वेशन दिस 2f ही तो था, ये 2g है? सर एफ, हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है। अरे क्या हो रहा है? सिलेक्ट 2g k plus 1 into x square plus 2 into k plus 3 into x plus k plus 8 equals to 0 has reciprocal roots. अब क्या करा जाए भाई? क्या रूट्स लिया जाए आयुष? अल्फा, Ayush, if Yes, one sir. of root is alpha, what will be the second root? अरे रेसिप्रोकल मीन्स यही जानते हो, रेसिप्रोकल ऑफ 2 क्या होता है? हर्ष, So 1 by रेसिप्रोकल ऑफ 2, 1 by 2, तो रेसिप्रोकल ऑफ अल्फा, 1 by alpha. okay. So if roots are reciprocal, so one of them is alpha, other will be 1 by alpha. Is that clear to you? Reciprocal roots means if one is 2, other is 1 by 2. If one is alpha, other is 1 by alpha. Understood? 1 by alpha. Yes. And we know that product will be now useful, as if we add them, it is alpha plus 1 by alpha. But if we find the product is alpha into beta, means beta is 1 by alpha, है ना? And alpha into beta equals to, on that, c by a. This time we will not use sum of roots.
as when we use product alpha into 1 by alpha, value of C is k plus 8 upon value of A is k plus 1. Alpha alpha cancelled out. 1 equals to k plus 8 upon k plus 1. K plus 1. K plus 8 equals to k plus k cancelled out. 8 equals to 1 is not possible. Yes, sir. यही हो रहा है. Now that means we have to take the sum also this time. है ना? Yes, sir. Sum of root will be alpha plus beta equals to minus b by a. Now alpha plus 1 by alpha will be there equals to minus b is 2 into k plus 3 upon a is k plus 1. Okay. अब इसमें एक चीज हमें सोचनी पड़ेगी, जैसे एक नंबर है और उसका सम है अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा, इसके लिए एक चीज याद रख लोगे. अच्छा 10th में कोर्स से एक्चुअली एक चीज हट गई थी, याद है तुम लोगों को? क्या? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ध्यान है? Yes, sir. इसका थोड़ा सा यूज है. अच्छा तो इसके लिए एक चीज याद जरूर रख सकते हो, चलो थोड़ा सा बता देते हैं इसको. इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का थोड़ा हल्का सा यूज है, बहुत नहीं. अच्छा अरिथमेटिक मीन तुम लोगों को याद है क्या होता है? Yes, sir. क्या होता है? सर उसमें फर्स्ट वो पिछला वाला मतलब उसमें जो होता है वो ये है ना a प्लस उसके गैप से. हाँ. सम ऑफ नंबर अपॉन 2 है ना, अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स. और एक और चीज बता दे दूसरे, ये कौन शोर मचा रहा है भाई बीच में? क्या? म्यूट कर लो. ज्योमेट्रिक मीन होता है ए बी होल टू द पावर हाफ. उसमें मीन्स प्रोडक्ट करके स्क्वायर रूट निकालते हैं, इसमें ऐड करके 2 से डिवाइड. और ज्योमेट्रिक मीन में प्रोडक्ट करके स्क्वायर रूट फाइंड करना है. समझ में आई बात? ये दो चीजें आई समझ में? इनको नोट्स में लिख लेना अलग से. एंड एक चीज ध्यान रखनी है कि अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन. अंडरस्टूड? Yes, sir. अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन. अब अगर हम अरिथमेटिक मीन ले लेंगे तो वो होगा a प्लस बी अपॉन 2. ओके. इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी होल टू द पावर हाफ. इज दैट क्लियर यू? तो पहले इसको Yes. फिर आगे का बताया. अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन. ठीक है? Yes, sir. देख लिया भाई सबने? अब यहाँ पे देखो दो नंबर जो है उसमें से एक है अल्फा और दूसरा क्या है? एक अल्फा है और दूसरा क्या है? 1 by alpha. Beta. तो अगर हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करें, ए के प्लेस पे अल्फा लगा दें और बी के प्लेस पे 1 बाई अल्फा, है ना, अपॉन 2, तो ये हो जाएगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए के प्लेस पे फिर अल्फा एंड बी के प्लेस पे 1 बाई अल्फा स्क्वायर रूट. ओके. तो इट इंप्लाइज अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा अल्फा कैंसिल्ड आउट 1 टू द पावर हाफ. अच्छा 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा. तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा कि अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. इज दैट क्लियर यू? Yes, sir. अब अगर हम लोग यही चीज इसमें यूज कर ले, ठीक है, ये क्या है? -2 इंटू के प्लस 3 अपॉन k plus 1. Okay, is greater than or equal to 1. Is that clear to you? Yes, sir. तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का मेथड है. तो ये -2 है. हमें पता है कि अगर हम लोग
माइनस से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है? सर साइन चेंज हो जाता है। साइन तो चेंज होता है, साथ में ये इनइक्वालिटी भी रिवर्स हो जाती है ना। देखो अगर जैसे कभी लिखा हो -3 इज लेस देन -2, सही है ना? ये -3 छोटा होता है -2 से, और अगर हम दोनों साइड माइनस यस सर। मल्टीप्लाई करें तो उल्टा हो गया, ये हो गया। यस सर। मीन्स इनइक्वालिटी रिवर्सेस व्हेन साइंस आर चेंज्ड। इज दैट क्लियर टू यू? ये रूल हम लोग यूज करते थे क्लास 10th में। यस सर। यस सर। इनइक्वालिटी reverses when signs are changed. ओके, यहां तक आ गया समझ में? यस सर। अब सबको एक साइड ट्रांसफर करना पड़ेगा। +1 इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है ना? ये इनइक्वालिटी सॉल्व करने का मेथड है। इट इम्प्लाइज, एलसीएम ले लिया, कितना है भाई? k+1, तो ये आएगा 2 इंटू k+3 प्लस 1 इंटू k+1 is less than equal to 0. It implies 2k plus 6 plus k plus 1 upon k+1 is less than equal to 0. It implies 2k plus k, 3k plus 6 plus 1, 7 upon k+1 is less than equal to 0. Is that clear to you? यहां तक हो गया? अब क्या करें? सर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय k+1। k+1 से अगर हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो ये बताओ कि k+1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये हम में से किसी को भी नहीं पता है कि k+1 पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इज दैट क्लियर टू यू? और इनइक्वालिटी को कभी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रिवर्स हो जाती है। समझ में आ रही ना बच्चों? कह रहे हैं अगर हम लोग k+1 से दोनों है, सबको आ रही बात समझ में जो कह रहे हैं? यस सर। Yes, sir. यस। We cannot multiply an inequality with a negative number, otherwise it will be reversed. तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो k+1 होल स्क्वायर कैसा है? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। ये तो पॉजिटिव ही होगा ना, क्योंकि स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। सो मल्टीप्लाइंग बाय k+1 होल स्क्वायर बोथ साइड। इनइक्वालिटी में हमेशा ऐसे ही सॉल्व करना है कि k+1 होल स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो भी डिनोमिनेटर में आए उसके होल स्क्वायर से करना है मल्टीप्लाई। ठीक है भाई? इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड इट इम्प्लाइज, तो एक k+1 तो कैंसिल हो गया, ये आ गया 3k+7 इंटू k+1 इज लेस देन इक्वल टू 0। अंडरस्टूड टिल नाउ? यस सर। में काफी सारे रूल्स लग गए, अभी एक और लगना है। यहां तक सबको समझ में आ गया कि फिर से बताए? चलो पूरा सॉल्व कर ले, फिर से बताते हैं। अब कुछ इनइक्वालिटी के रूल्स हैं, वो हम लोगों को लिखने हैं, वो भी अपने नोट्स में लिख लेना। ठीक है भाई? अगर कभी भी x माइनस ए इंटू x माइनस बी लेस देन 0 आ जाए, ठीक है ना भाई? क्या लिखा हमने? चलो रूल्स नहीं करना है तो एक और मेथड भी है हमारे पास, बिना रूल्स के भी हो जाएगा, वो पहले बता देते, रूल्स बाद में बताएंगे। देखो भाई 11th की मैथ्स है, थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ता है, तो तुम लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। ये आ गया समझ में यहाँ तक कि नहीं आया? क्यों भाई? 3k यस सर। यस। प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब एक टेबल बनाते हैं हम लोग, ठीक है? अब अच्छा ये बताओ कि अगर इसको हम लोग 0 के इक्वल रख दे पूरे को, तो k की 2 वैल्यूज आ रही है, क्या क्या आ रही है? k इक्वल्स टू -1 और k इक्वल्स टू -7। -7/3.
ये लेकिन ये दोनों वैल्यू कब आ रही है? जब इक्वल्स टू 0, लेकिन यहाँ पे तो लेस देन भी लिखा है ना। अच्छा, इन दोनों में छोटा कौन बड़ा कौन? नंबर लाइन पे हमें इनको मार्क करना हो, ये 0 है तो पहले कौन आएगा दो में से? -1 या -7/3? ऐसे आएगा क्योंकि ये है -2 -1। है ना, तो ये छोटा है और -1 इज ग्रेटर। यहां तक समझ में आ गई बात? नहीं? Yes, sir. तो यस भाई सबको समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. यस सर। तो एक हम लोग इससे नीचे चलते हैं, -7/3 से नीचे कहां तक जा सकते हैं? -∞ तक, है ना। इंफिनिटी। तो यस इसे सर। यहाँ पे हमें इंटरवल्स लिखने पड़ेंगे। ये सब पहला इंटरवल है when k lies between k is less than -7/3. okay, k is less than -7/3 का मतलब इससे नीचे जितने भी नंबर है हमें उसको चेक करना है। समझ में आ रही बात? यह पता है कि -2 और 1/3 है, तो इससे छोटा नंबर कौन सा होता है? -3 होता है कि नहीं होता है? और -4 -5 पे देखना है। सब पे देखने की कोई जरूरत नहीं, किसी एक पे देख लेंगे अगर सबका नेचर वैसा ही। ठीक है, फिर दूसरा जो इंटरवल है इन दोनों के बीच में होगा। अच्छा, यहाँ पे इक्वालिटी भी है, तो दूसरा जो होगा अपना इंटरवल ना हो के एक सिंगल पॉइंट है k इक्वल्स टू -7/3। इस पे हमें देखना है कि चेक करना है कि वो लाई करेगा, और करेगा क्लियरली क्योंकि निकाला है इसी को 0 रख के था, है कि नहीं। फिर तीसरा जो पॉइंट होगा उसमें हम लेंगे कि k लाइज बिटवीन -7 मतलब इन दोनों के बीच में, फ्रॉम -7/3 to -1। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. यस और फिर नेक्स्ट है फिर से -1 से ग्रेटर। ठीक है, एक तो लेंगे यही कि k इक्वल्स टू -1 पहले, और फिर लास्ट आ रहा है कि k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ना, इक्वल टू तो हमने अलग ही ले लिया, नहीं तो कंफ्यूजन कर सकता है ना। तो आएगा k इज ग्रेटर देन -1। यहां तक समझ में आया भाई? क्यों? Yes, sir. यस सबको समझ में आई बात? क्या क्या लिया है? क्योंकि अपने पास दो जीरोस आए थे, एक आया था k इक्वल्स टू -1, दूसरा आया है k इक्वल्स टू -7/3। तो पहला लेंगे कि k -7/3 से छोटा, दूसरा लेंगे कि ये खुद -7/3, तीसरा लेंगे इट लाइज बिटवीन -7/3 to -1, एंड फोर्थ लेंगे इट इज ग्रेटर देन -1। ओके, यहां तक आ गया भाई सबको समझ में? हाँ या ना बता। Yes. यस तो सर। PDF भेज देंगे, परेशान ना हो छापने में। छापने बैठोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, आराम से देख लो। ठीक है, फिर तुरंत PDF भेज रहे। ठीक है भाई। अब k इज लेस देन -7/3, कोई टेस्ट पॉइंट लेने का मतलब कि k की कोई वैल्यू ली जाए। तो -7/3 से छोटा हम लोगों ने एक पॉइंट देखा है, कौन सा है? k इक्वल्स टू -3। k इक्वल्स टू -3, और फिर इसकी वैल्यू हम चेक करेंगे कि इस पे लेस देन आ रही है कि ग्रेटर देन आ रही है। अच्छा, हम लोगों को लानी लेस देन है ना ये, तो अगर ग्रेटर देन आती है तो वो रॉन्ग होगा। ठीक है, तो वहां पे सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो 3k + 1, अब k की वैल्यू -3 इसमें रखो, क्या आएगा? 3 इंटू -3 + 7 इंटू -3 + 1 इक्वल्स टू -9 + 7 आ गया -2 इंटू -2 इक्वल्स टू 4। ये कैसा आया? पॉजिटिव आया? यस तो पॉजिटिव है ना, लेकिन हमें लाना कैसा है? नेगेटिव। तो इसको लिख देंगे नो, नॉट सेटिस्फाइड। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. अब दूसरा पॉइंट है -7/3। क्लियरली k इक्वल्स टू -7/3 रखने पे तो ये 0 आएगा, और ये भी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? यस सर। तो भी है ना। फिर तीसरा पॉइंट है -7/3 to -1 के बीच में कोई एक, अब ये पता है -2 है -1 है, इनके बीच में तो -2 ही आएगा।
है ना, -2 इनके बीच Yes. देखो, ये उससे छोटा है -2 से, और ये -1 -2 से बड़ा है, तो इनके बीच में एक पॉइंट ये -2 आ रहा है कहीं पे भी। इज दैट क्लियर टू यू? तो टेस्ट पॉइंट अब ले ले रहे हैं -2। ओके, सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो 3 इंटू -2 कितना हुआ, -6 + 7 इसमें, है ना, इंटू -2 + 1, तो आ गया 1 इंटू -1, तो ये बताया नेगेटिव आया, तो कर रहा है सेटिस्फाई? तो हमें Yes, sir. 0 मींस नेगेटिव ही लाना है ना, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. अब k इक्वल्स Yes, sir. -1 तो करेगा ही करेगा, क्योंकि ये -1 + 1 पे 0 हो जाना है, तो ये भी कर रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं k ग्रेटर देन -1। ग्रेटर देन -1 तो बहुत अच्छा नंबर है एक अपने पास, 0, तो वो ले लिया, k इक्वल्स टू 0। सब्स्टिट्यूट करके देखो, 0 + 7 इंटू 0 + 1, ये 7 आ गया ग्रेटर देन 0 मीन्स नॉट सेटिस्फाइंग। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. तो कहां से कहां तक सेटिस्फाई किया, ये स्टार्ट हुआ -7/3 से, वो भी है, और फिर इनके बीच में सारे के सारे और 0. -1 पे भी कर रहा है, तो अपने पास आंसर आया कि k लाइज बिटवीन -7/3 टू -1, पूरा है ना ये देखो, कि -7/3 से लेके -1 तक है पूरा खेल, और सारी के सारे वैल्यूज है k की, ये आंसर आ गया, इंक्लूडिंग बोथ, दोनों इंक्लूडेड भी थे ना, -7/3 पे भी सेटिस्फाई कर रहा था और -1 पे भी कर रहा था। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. फिर से बताएं, तो वो सिंपल सी चीज थी, सिंपल तो नहीं थी बहुत ज्यादा, लेकिन सिंपल ही है ना। तो फिर हम आते हैं, इक्वेशन इज k + 1 × x² + 2 × k + 3 × x + k + 8 = 0 has reciprocal root. So if one of the root is considered to be alpha, other root will be 1/alpha. Now if we use the product alpha beta equals to c by, as it appears to be easier, है ना, to use. Why? As alpha will be cancelled out from both, as beta is equals to 1/alpha. But when we use this, it is giving 8 = 1, हो सकता है कभी, so it is not possible. तो अब अपना काम लंबा हो गया, सीधी बात है। अगर यहां से हो जाता तो बहुत इजी था, है ना, नहीं हुआ तो अब हमें सम ऑफ रूट्स का यूज करना है। सारी बात समझ में? Now alpha plus beta equals to -b/a. Okay, so when we use alpha in place of alpha and 1/alpha in place of beta, it is equal to minus, and value of b from the equation is 2 × k + 3, and value of a from the equation is k + 1. Okay, अभी लिखो मत भाई, सुन लो। अब यहां पे आ गया, फिर से मामला फंस गया कि अब क्या करें, है कि नहीं? तो इसको इक्वेशन लिख के छोड़ा, आप कुछ रूल्स हमने कहा तुमसे नोट्स में लिख लो। अरिथमेटिक मीन इज a + b/2, ज्योमेट्रिक मीन इज √ab. ओके, एंड दिस इज द रूल दैट अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज greater than or equal to geometric mean, means sum of two numbers upon 2 is greater than or equal to square root of their product. Okay, so if we assume one of the number to be alpha and other is 1/alpha, so sum of number alpha plus 1/alpha upon 2 is greater than or equal to alpha into 1/alpha whole to the power half. Okay, so alpha plus 1/alpha upon 2 is greater than or equal to 1 to the power half. Square root of 1 तो 1 होता है, मतलब अपने पास रूल क्या आया कि अल्फा प्लस 1/alpha इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब भैया हमने एक अल्फा प्लस 1/alpha इक्वेशन 1 में छोड़ा है, तो यहां पे उसको ले आओ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग लिख सकते हैं -2 × k + 3/k + 1, which is the value of alpha plus 1/alpha is greater than equal to 1. So when we multiply both sides by -1, inequality will be reversed. Okay, so 2 × k + 3/k + 1 is less than equal to -1. Now transfer this -1 also to the left hand side. So 2 × k + 3/k + 1 + 1 is less than equal to 0. Now take the LCM k + 1. So 2 × k + 3 + k + 1 upon k + 1 is less than equal to 0.
So when we open 2k plus 6 plus k plus 1 upon k plus 1 is less than equal to 0. So 3k plus 7 upon k plus 1 is less than equal to 0. Now we cannot multiply an inequality with a negative number as it will be reversed, and we are not confirmed that whether k plus 1 is positive or negative. So multiply with the square of the denominator, that is k plus 1 whole square both sides. It is the positive number. Is that clear to everyone? So 3k plus 7 upon k into k plus 1 whole square is less than equal to 0. So it is 3k plus 1 into k plus 1 is less than equal to 0. Now how to solve this inequality? 10th के कोर्स में भी ये था अपने पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में छोड़ दिए होंगे क्वेश्चन, वो बात अलग है। तो अब हम लोग इसमें दो जीरोस निकाल ले, एक ले लिया k इक्वल्स टू -1, दूसरा ले लिया k इक्वल्स टू -7/3। ठीक है, इनको नंबर लाइन पे मार्क कर लो तो पता चल जाएगा -7/3 छोटा है और -1 इज ग्रेटर। अब -7/3 से छोटा मींस द नंबर विच इज लेस देन -7/3 इज टेकन एज द टेस्ट पॉइंट। यहाँ पे हमने देख लिया कि -3 इज स्मॉलर देन -7/3, तो उसको हमने टेस्ट पॉइंट लिया है। जब इस पे चेक किया तो ये पॉजिटिव दे रहा है इस नंबर की वैल्यू, तो 3k + 7 × k + 1, लेकिन हमें चाहिए कैसा, नेगेटिव, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इज दैट क्लियर टू यू? So now we will check Yes, sir. the next -7/3, तो उस पे ये 0 ही आएगा क्योंकि निकाला है इसको 0 रख के था, तो ये भी कर रहा है सेटिस्फाई, क्योंकि यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू दोनों चलेगा, ऐसा लिखा है ना यहाँ पे ऊपर इनइक्वालिटी। क्यों भाई? तो फिर ये कर रहा है। दूसरा, अगेन द सेकेंड इनइक्वालिटी लाइज बिटवीन -7/3 टू -1, कोई पॉइंट ले लो टेस्ट पॉइंट, तो हमने सर्च किया, ये -2 मिल गया। ठीक है, क्योंकि -2 and 1/3 से बड़ा है, -1 से छोटा है, मींस इट मस्ट लाई बिटवीन somewhere between -2 and 1/3 to -1. Okay, so when we have taken it as the test point, it is giving -1, और जब इसने -1 दिया तो नेगेटिव आ गया ना, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। फिर -1 पे 0, ये भी कर रहा है। -1 से ग्रेटर एक नंबर ले लिया 0, 0 पे देखा तो पॉजिटिव आ गया, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो कहाँ कर रहा है? when k lies between -7/3 to -1 including, is that clear to everyone? Yes, sir. तो हम इसकी तुम लोगों को भेज दे रहे हैं, क्या कहते हैं इसको, PDF। ठीक, तो देख लो उसको एक बार, समझ लो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो नेक्स्ट सेशन में आगे। ठीक है भाई? Yes, sir. अभी एंड कर रहे हैं सेशन और तुरंत तुमको इसकी PDF भेज दो। ठीक है, कॉपी भी कर ले, समझ भी लेना, कोई डाउट हो तो उसमें पूछ लेना। ठीक।